حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی۔ نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے سلامتی بنا دیا اور وہ بخیریت اس آگ سے باہر آ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹے تو ان کے والد نے سختی سے کہا، اے ابراہیم، اگر تم اپنے رب کو نہیں چھوڑتے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہ کیا، خاموشی سے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو لے کر فلسطین چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ مگر ایک دکھ ہر لمحہ ان کے دل کو چبھتا رہا، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ دن رات اپنے رب کی حضور جھکتے، آنکھوں میں نمی، دل میں درد اور لبوں پر ایک ہی دعا ہوتی، اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ سال گزرتے گئے، وقت ڈھلتا گیا، عمر بڑھتی گئی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ لیکن امید اب بھی باقی تھی۔ 84 برس کی عمر میں بھی وہ اپنے رب سے یہی التجا کرتے رہے، اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ آخر کار اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پیارا سا بیٹا عطا ہوا۔ انہوں نے اس کا نام رکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوچئے، ایک باپ جس نے 84 برس کی عمر میں بیٹا پایا ہو، اس کے دل میں اس بچے کے لیے کتنی محبت ہوگی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے اور اس کی معصوم ہنسی میں خود بھی مسکرا اٹھتے۔ مگر یہ خوشیوں کے لمحے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ ابھی اس ننھے بیٹے کی پیدائش کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور نہایت سنجیدہ آواز میں کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو خود سے جدا کر دیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، اے جبرائیل، میں اپنی بیوی اور اس ننھے بچے کو کہاں چھوڑاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جہاں اللہ کا حکم ہوگا میں آپ کو وہیں لے جاؤں گا۔ کل صبح میں انسانی شکل میں اونٹ پر آؤں گا۔ آپ اپنی بیوی اور بچے کو تیار رکھیے اور میرے پیچھے چل پڑیے۔ اگلی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اونٹ پر بٹھایا اور خود بھی سوار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ فلسطین سے روانہ ہوئے، شہر در شہر گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ آخر کار ایک طویل سفر کے بعد وہ عرب کی سرزمین پر پہنچے۔ وہ زمین جہاں ہر طرف ویرانی تھی، نہ کوئی انسان نہ کوئی پرندہ، بس خاموشی اور سناٹا۔ جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ کالے سنسان پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ وہ 4 اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں پہنچے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، مگر اس وقت وہاں دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اونٹ روکا اور آہستہ سے کہا، اے ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہیں اتار دیں اور خود واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جیسے لرز اٹھا۔
ये वही इब्राहिम थे जो आग में डाले जाने पर भी साबित कदम रहे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफी है। मगर आज ये आजमाइश पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। अपनी बीवी और अपने जिगर के टुकड़े को इस सुनसान वादी में छोड़ देना उनके दिल को बेकरार कर गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। वो दर्द भरी आवाज में बोले, ऐ जिब्राइल, ये आप क्या कह रहे हैं? यहां ना पानी है ना खाना, मेरी बीवी और मेरा नन्हा बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है। आप उन्हें यहीं छोड़ दीजिए और वापस फलस्तीन लौट जाइए। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से चले गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े रह गए, अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए। उन्होंने नन्हे इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ये ख्याल आया हो, क्या मैं अब अपने इस बेटे से जुदा हो रहा हूं? क्या मैं उसे दोबारा कभी देख भी पाऊंगा? जल्दी जल्दी उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। फिर अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे को उसमें बिठाया और भारी कदमों के साथ फलस्तीन की तरफ वापस चल पड़े। शौहर को जाता देखकर हजरत हाजरा बेताब होकर पीछे दौड़ी। आंखों में आंसू, आवाज में दर्द, वो रोते हुए बोली, आप हमें इस वीरान वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहां ना खाना है ना पानी, मैं और मेरा बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देने ही वाले थे कि उसी लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपको हुक्म है कि अपनी बीवी को कोई जवाब ना दें, बस खामोशी से वापस लौट जाएं। दोस्तों, जरा सोचिए इस बूढ़े बाप का दर्द, जिसे 84 बरस की दुआओं के बाद एक बेटा मिला। आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, और आज वही बाप अपने उसी लखते जिगर को एक सुनसान वादी में छोड़कर जा रहा है। ऊंट आगे बढ़ता जा रहा था और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपनी गोद में नन्हे इस्माइल को लिए उसके पीछे दौड़ रही थीं। वो रोते हुए बार बार पूछ रही थीं, आप हमें क्यों छोड़कर जा रही हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसी जिंदा रहूंगी? आप तो जानते हैं ये बच्चा हमें कितनी दुआओं और मिन्नतों के बाद मिला है। क्या आप इसे यूं ही इस वीरान जगह पर छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल दोहराती रही, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, मगर जबान पर खामोशी का पहरा था, सिर्फ अपने रब की रजा के लिए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम मुसलसल पीछे दौड़ती रहीं। कभी पुकार कर कहती, कुछ तो जवाब दीजिए, आप इतने खामोश क्यों हैं? वो तकरीबन 9 किलोमीटर तक अपने शौहर की ऊंट के पीछे दौड़ती रहीं। हर कदम पर दिल को चीर देने वाले सवाल करती रहीं। आखिरकार जब वो थक कर निढाल हो गई तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो अल्लाह की नबी हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, क्या ये सब अल्लाह का हुक्म है? वो रुक गईं और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस सुनसान वादी में छोड़ दें? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबान से तो कुछ ना कह सके, मगर सर झुकाकर हल्का सा इशारा किया, हां, ये अल्लाह का हुक्म है। ये सुनते ही हजरत हाजरा की आंखों में आंसू तो थे, मगर दिल में एक अजीब सा हौसला जाग उठा। उन्होंने मजबूत आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप जाइए, मेरा रब मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा।
मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये कहकर वो वहीं खड़ी रह गई और अपने शौहर को दूर जाते हुए देखती रहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल होता गया। फिर अचानक वो एक पहाड़ के पीछे गायब हो गया और हजरत हाजरा की निगाहों से हमेशा के लिए ओझल हो गया। वहीं उसी जगह हजरत हाजरा बैठ गईं और देर तक रोती रहीं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी बीवी नजर न आई। दिल बेचैन हो उठा, आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपनी ऊंट को एक पहाड़ के नीचे रोका और सजदे में गिर गए। रोते हुए अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को इस सुनसान और बंजर जमीन में छोड़ दिया है। यहां ना पानी है ना खाना। मुझे नहीं मालूम ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ऐ अल्लाह, तू ही उनका निगहबान है, तू ही उनकी हिफाजत फरमाना। ये दुआ करके वो भारी दिल के साथ फलस्तीन की तरफ रवाना हो गए। और इधर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने नन्हे इस्माइल को गोद में उठाए आहिस्ता आहिस्ता उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हजरत हाजरा कोई आम औरत न थी, वो मिस्र के बादशाह के महल में पलने वाली शहजादी थी। मगर आज अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोपड़ी में पहुंची, रात हो चुकी थी। वो खामोशी से अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही। चारों तरफ सियाह पहाड़ थे, आसमान सितारों से भरा हुआ था। मगर इस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। शायद चांद भी हैरान था। ये कौन औरत है जो इस सुनसान वादी में तन्हा बैठी है? ये सियाह पहाड़ भी जैसे सोच रही हूं, ये कैसी मां है जो अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए इस खामोशी में बैठी है? ये वो जगह थी जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। ना पानी, ना खाना, ना कोई इंसान। तो ये कौन है और क्यों रो रही है? दोस्तों, ये थी हमारी मां हजरत हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दी। एक आम इंसान छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाता है, मगर हजरत हाजरा का सब्र क्या ही असीम था। वो अकेली इन वीरान पहाड़ों के दरमियान अंधेरी रात में सिर्फ अपने रब पर भरोसा किए बैठी थी। उनके सामने बज़ाहिर सिर्फ मौत थी। वो आसमान की तरफ देखती होंगी और दिल ही दिल में कहती होंगी, ए अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैंने तो सिर्फ तेरा हुक्म माना है। उन्हें मालूम था कि यहाँ कहीं पानी नहीं, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पता देख सकती थीं? हरगिज नहीं। इसी उम्मीद के सहारे वो अपने बच्चे को छोड़कर सफा पहाड़ी पर चढ़ गईं कि शायद कहीं से पानी नजर आ जाए, मगर हर तरफ वीरानी थी। फिर वो दौड़ती हुई मरवा की तरफ गईं, मगर वहां भी कुछ न मिला। दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो कोई ना कोई साथ देने वाला होता है, मगर आज इस पथरीली जमीन पर एक बेबस मां थी जो अपने बच्चे को प्यास से तड़पते देख रही थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। हजरत हाजरा की आंखों में आंसू थे। वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रही थी कि शायद पानी का एक कतरा मिल जाए, शायद अपने बच्चे को मौत से बचा सकूं, मगर हर तरफ खुश्की थी, ना कहीं पानी, ना कोई सहारा। वो मिस्र के बादशाह के महल में पलने वाली शहजादी थी, मगर आज अल्लाह के हुक्म पर इस आजमाइश में खड़ी थी। वो बार बार सफा की तरफ जाती, फिर मरवा की तरफ दौड़ती। हर बार मायूसी हाथ लगती। जब दिल घबराता तो दौड़कर झोपड़ी की तरफ आती कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं।
ये तलाश सुबह से दोपहर में बदल गई। सूरज तेज हो गया, जैसे मक्का की जमीन जल रही हो। वो खुद प्यास से बेहाल थी और उनका मासूम बच्चा भी शिद्दत से पानी के लिए रो रहा था। झोंपड़ी के अंदर बच्चा बिलक रहा था और बाहर उसकी मां बेकरार होकर पानी ढूंढ रही थी। आखिरकार थक कर वो सफा पर गिर पड़ी। अब उनमें तलाश की भी ताकत न रही थी। मौत जैसे सामने खड़ी थी। बच्चे की रोने की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, मगर वो बेबस थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अल्लाह से फरियाद करती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं तो यहीं प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा झोपड़ी में तड़प कर दम तोड़ देगा। या रब, हम बेबस मां बेटे पर रहम फरमा। ये कहकर उन्होंने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंखें बंद कर ली, मगर बच्चे की रोने की आवाज दिल को चीरती रही। फिर मां का दिल ना माना। वो फौरन उठी और झोपड़ी की तरफ देखा तो एक हैरान कुन मंजर उनके सामने था। झोपड़ी के पास एक इंसान खड़ा था और जमीन से तेजी के साथ पानी उबल रहा था। वो घबराकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो शख्स गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के करीब से निकल रहा है। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और उनकी वालिदा के लिए इस सख्त जमीन से पानी जारी फरमा दिया था। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जमीन से एक चश्मा फूट निकला। चश्मा फूट पड़ा और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। ये मंजर देखकर हजरत हाजरा सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने फौरन अपने प्यासे बच्चे हजरत इस्माइल को पानी पिलाया। वो पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि हजरत हाजरा ने मिट्टी और पत्थरों से इसके गिर्द एक छोटी सी मुंडेर बना दी ताकि पानी एक जगह ठहर जाए। आज उसी मुबारक चश्मे को जमजम कहा जाता है और इसका पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। हजरत हाजरा अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो जमजम का पानी पीती और खजूरों और कुछ फलों से अपनी जिंदगी गुजारने लगी। अब जब वहां पानी आ गया तो आहिस्ता आहिस्ता रिज्क और आसाइशें भी आने लगी। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन वहां से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। उस काफिले का सरदार निहायत समझदार शख्स था। उसने आसमान में एक परिंदा चक्कर लगाते देखा और कहा, ये परिंदा हमेशा पानी के करीब ही मंडलाता है, मगर हम तो इस इलाके से कई बार गुजरे हैं, यहाँ कभी पानी नहीं देखा। अगर यहाँ पानी ना होता तो ये परिंदा यहाँ क्यों आता? फिर उसने अपने एक साथी से कहा, जाकर देखो, शायद कहीं पानी हो। वो शख्स आगे बढ़ा, एक पहाड़ पर चढ़ा और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। एक चश्मा बह रहा था और उसके पास एक औरत अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। वो फौरन वापस गया और अपने सरदार को बताया कि आपकी बात दुरुस्त थी, वहां वाकई पानी है और एक औरत अपने बच्चे के साथ इसी चश्मे के पास बैठी है। ये सुनकर सरदार हैरान रह गया कि इस सुनसान वादी में कोई औरत कैसे रह सकती है। वो फौरन वहां पहुंचा और देखा कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपनी बेटी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए चश्मा जमजम के पास बैठी हैं। उसने पूछा, ए औरत, तुम कौन हो? हजरत हाजरा ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हूं। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मुझे इस वादी में छोड़ा और अल्लाह ने हमारे लिए इस जमीन से पानी निकाल दिया। हम इसी पर गुजारा कर रहे हैं। ये सुनकर सरदार बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ऐ नेक खातून, अगर आप इजाजत दें तो हम अपने अहलो अयाल के साथ यहाँ आपके करीब आबाद होना चाहते हैं। हजरत हाजरा ने फरमाया, हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो और इस पानी से फायदा उठा सकते हो, मगर याद रखो, ये चश्मा किसी की मिल्कियत नहीं बल्कि ये अल्लाह की अता है। ये चश्मा अल्लाह ने जारी फरमाया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की हरगिज कोशिश ना करना। सरदार ने आजिज़ी से वादा किया, ऐ नेक खातून, आप बेफिक्र रहें, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि जहां तक हो सका आपकी मदद करेंगे। फिर वो सब लोग चश्माए जमजम के आसपास अपने घर बनाकर वहीं आबाद हो गए। इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे की जुदाई में बेचैन रहते। हर रोज अल्लाह से दुआ करते, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत अता फरमा। 1 साल इसी तरह गुजर गया, मगर इजाजत ना मिली।
फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मक्का जाने की इजाजत दे दी, मगर शर्त ये थी कि वो सिर्फ जाकर उन्हें देखें और वापस लौट आएं, ठहरने की इजाजत न थी। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी की कोई हद ना रही और वो फौरन अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। एक तवील सफर के बाद वो उस वादी में पहुंचे जहां वो अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर आए थे। तो हजरत हाजरा ने दूर से अपने शौहर को आते देखा। उनकी खुशी बेकाबू हो गई। वो दौड़ती हुई आईं और अर्ज किया, अंदर तशरीफ लाएं। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़ी होकर मिलने की इजाजत है, ऊंटनी से उतरने की नहीं। ये सुनकर हजरत हाजरा का दिल टूट गया, मगर उन्होंने सब्र किया और दिल में कहा, मैं अपने रब के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करूंगी। उस वक्त उनकी गोद में 1 साल का नन्हा इस्माइल था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना बेटा मुझे दे दो। हजरत हाजरा ने फौरन बच्चा उनके हवाले कर दिया। उन्होंने अपने लख्ती जिगर इस्माइल को गोद में लिया, मोहब्बत और हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। बरसों की दुआओं के बाद ये बेटा मिला था, मगर मिला भी तो जुदाई के साथ। अब मिलने की इजाजत भी सिर्फ साल में एक बार, और वो भी चंद लम्हों के लिए। फिर हुक्म आया, ए इब्राहिम, वापस फलस्तीन लौट जाओ और अपने बेटे को भी उसी वीरान वादी में अल्लाह के सुपुर्द कर दो, वही उनका मुहाफिज है। जरा सोचिए, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे होंगे तो हजरत हाजरा के दिल पर क्या गुजरी होगी। पूरा साल इंतजार किया और जब मुलाकात हुई तो ना बैठना नसीब हुआ ना ठहरना, बस चंद लम्हे खड़े खड़े गुजरे और फिर जुदाई। अगर वो आते ही ना तो शायद सब्र आ जाता, मगर अब यादें फिर से ताजा हो गई। दिल जल उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसी सुनसान वादी में खड़ी अपने शौहर को दूर जाते देखती रहीं। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में और हजरत हाजरा अपने बेटी के साथ उसी वीराने में जिंदगी गुजारती रहीं। इसी तरह 7 साल गुजर गए और हजरत इस्माइल 7 बरस की हो गए। इन 7 बरसों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्का आने की इजाजत ना मिली। वो दिन रात अपनी बीवी बच्चे को याद करते और उनके लिए दुआएं करते रहे। 7 साल बाद एक रात उन्होंने एक ख्वाब देखा कि कोई आवाज पुकार रही है, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबराकर जाग उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया और उसी आवाज ने पुकारा, ए इब्राहिम, कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, मगर तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल की तरफ है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने इसी बेटे से थी। उनके दिल ने गवाही दी कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसी की राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई तो उन्होंने एक तेज धार छुरी ली, ऊंटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। जरा सोचिए, जिस बेटे के लिए बरसों दुआएं की, जिसे बुढ़ापे में पाया, जिसे जी भरकर गले लगाने का भी मौका ना मिला, अब जब मुलाकात की घड़ी आई तो साथ ही ये हुक्म भी था कि जाकर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ऊंटनी का हर कदम उनके दिल पर ज़र्ब लगा रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ ये कड़ी आजमाइश। ये सोच कि इसी बेटे को अपने हाथों छुरी के नीचे लिटाना है, दिल को चीर रही थी। इधर नन्हे इस्माइल रोज अपनी माँ से पूछते, अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन हैं? वो कब आएंगे? हजरत हाजरा प्यार से कहती, बेटा परेशान ना हो, एक दिन तुम्हारे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब इकट्ठे रहेंगे। और फिर वो दिन आ ही गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तवील सफर तय करके मक्का पहुंचे। हजरत हाजरा ने जैसे ही उन्हें देखा, आंखें खुशी से भर आईं। इस्माइल ने पहली बार अपने अब्बा को देखा और दौड़कर उनसे लिपट गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा से फरमाया कि मेरे बेटे को तैयार कर दो। हजरत हाजरा ने दिल पर पत्थर रखकर फौरन उसे तैयार किया, गोया जानती थीं कि आज बेटे के नसीब में एक अजीम आजमाइश लिखी है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मिना की वादी की तरफ रवाना हो गए।
इस्माइल खुश थे, मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपने वालिद के साथ चल रहे थे, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा देती और कभी आंखें नम हो जाती कि मैं इसी बेटे को कुर्बान करने जा रहा हूं। रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाली शख्स की सूरत में आया और बोला, ए इब्राहीम, कहां जा रहे हो? उन्होंने फरमाया, एक काम से। उसने कहा, क्या तुम इस्माइल को ज़िबह करने जा रही हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबह करे? शैतान बोला, हाँ, मैं देख रहा हूं, तुम यही करने जा रही हो। क्या तुम्हें यकीन है कि ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं जरूर उसकी फरमाबरदारी करूंगा। फिर शैतान हजरत हाजरा के पास आया और कहने लगा, इब्राहीम, तुम्हारी बेटी को कहां ली गई है? हजरत हाजरा ने जवाब दिया, वो अपने काम से गई हैं। शैतान ने वसवसा डाला, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपनी बेटी को ज़िबह करे? वो समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इसका हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने फरमाया, अगर वाकई ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, मगर उन्होंने भी वही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बा जान अल्लाह के हुक्म पर मुझे कुर्बान करने ले जा रहे हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं। जब शैतान बाप और बेटे दोनों को बहकाने में नाकाम हो गया तो वो जमरात की जगह के करीब आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे कंकरियां मारी और वो पीछे हट गया। फिर वो दूसरी मकाम पर आया तो दोबारा कंकरियां मारी गईं और वो फिर हट गया। तीसरी बार भी यही हुआ और यूं शैतान तीनों मकामात से रुस्वा होकर भाग गया। आज भी इसी याद में हाजी इन मकामात पर कंकरियां मारते हैं। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानी की जगह पहुंचे तो उन्होंने बेटे को अल्लाह के हुक्म से आगाह किया, जैसा कि कुरान में जिक्र है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है? ये सुनकर फरमाबरदार बेटे ने अर्ज किया, ऐ मेरे अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं और कहीं मेरी अजर में कमी ना हो, और मेरी खून की छींटों से अपने कपड़े बचा लीजिए ताकि मेरी अम्मी जान को ज्यादा गम ना हो। छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि तकलीफ कम हो, क्योंकि मौत सख्त होती है, और जब मुझे ज़िबह करें तो मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मुझ पर ना पड़े, और जब मेरी अम्मी से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहिए, और अगर मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए, शायद इससे उन्हें तसल्ली मिल जाए। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरी कितनी बड़ी मददगार साबित हो रही हो। फिर जिस तरह अल्लाह का हुक्म था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जैसे कहा था वैसे ही उन्हें बांध दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को खूब तेज किया, अपने प्यारे बेटे को पेशानी के बल लिटाया और अपना चेहरा फेर लिया। फिर कांपते हाथों से छुरी उनके गले पर चलाई, मगर छुरी ने अपना काम ना किया, गला ना कटा। उसी लम्हे वही नाजिल हुई, ए इब्राहीम, बेशक तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेक लोगों को इसी तरह जजा देते हैं। यकीनन ये एक खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ी कुर्बानी के बदले तुम्हारे बेटे को बचा लिया। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए और बुलंद आवाज से पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और समझ गए कि आजमाइश पूरी हो चुकी है और अल्लाह ने बेटे के बदले फिदिया भेज दिया है। खुशी और शुक्र से उनके लबों पर आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मुबारक कलिमात आज भी कुर्बानी के वक्त अदा किए जाते हैं और क़यामत तक अदा किए जाते रहेंगे। दुनिया भर के मुसलमान इस अजीम सुन्नत को जिंदा रखते हैं और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ये अमल ईद उल अज़हा के 3 दिनों में अदा किया जाता है, जिसमें बकरी, गाय और ऊंट जैसे जानवर कुर्बान किए जाते हैं। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक अपने घर के लिए रखा जाता है। इसी में एहसार, मोहब्बत और अल्लाह की रजा का सबक पोशीदा है। हम दुआ करते हैं कि ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको अल्लाह की कुव्वत और सब्र का पैगाम दी गई हो।